بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہیں ایک دوسرے سے جدا ہوئے 1 برس سے اوپر عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران میں جینا کبھی مندروں گردواروں میں جاتی رہی، کبھی چرچ اور یہودیوں کی عبادت گاہوں میں جا کر مذہبی پیشواؤں اور عالموں سے ملتی رہی، ہر مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی، ان کی روحانی تعلیمات کے مطابق گیان دھیان میں مصروف رہی۔ پھر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا، وہی بزرگ اس سے فرما رہے تھے، اب تم پیرس کے مضافاتی علاقے میں چلی آؤ، وہاں جناب علی اسد اللہ تبریزی کا ادارہ ہے، اس ادارے کا دروازہ تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، یہ بھی سنا تھا کہ غیر مسلموں کے لیے اس ادارے میں داخلہ بند ہے، کبھی کسی غیر مذہب والے کو وہاں قدم رکھنے نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی کوئی چوری چھپے یا جبرن وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ پیرس پہنچی تو بابا صاحب کے ادارے کی گاڑی اسے لینے آئی تھی۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر ادارے کے دروازے پر پہنچی تو وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ وہاں کے علماء دین اور ڈاکٹروں نے اس کا استقبال کیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہاں اسے اس کے علاج کے لیے بلایا گیا ہے، یہاں اس میں یہ انقلابی تبدیلی آئیں گی کہ وہ مکمل ایک لڑکی بن جائے گی، پھر اس کے اندر جو غیر معمولی صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گی۔ بابا صاحب کا ادارہ کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، وہاں بہت عالی شان مسجد، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی، اسپتال، سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کی درسگاہیں اور سائنسی لیبارٹری وغیرہ تھیں۔ دنیا کے تجربے کار ماہر، معلم، ڈاکٹر اور سائنسدان تھے۔ وہاں کم سن بچوں اور نوجوان طلبہ و طالبات کے لیے خوبصورت اور آرام دہ ہاسٹل بنے ہوئے تھے۔ ماہرین کی نگرانی میں نصابی تعلیم کے علاوہ یوگا، جمناسٹک اور مارشل آرٹ وغیرہ کی تربیت دی جاتی تھی۔ جینا نے سنا تھا کہ اسلام انتہا پسندوں کا مذہب ہے، اسلامی تعلیمات دینے والے لکیر کے فقیر ہیں، وہ ماضی کی طرف اور پسماندگی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں کے جدید تعلیم و تربیت کے طور طریقے اور سائنسی لیبارٹری وغیرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں ایسا اتحاد، ایسی تنظیم اور ایسا ایمان افروز ماحول تھا کہ وہ پہلے ہی دن متاثر ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے کہا وہاں سے کبھی نہیں جائے گی، لیکن جناب تبریزی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں اور کہا، بیٹی تمہیں یہاں صرف 40 دنوں کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس نے مایوس ہو کر پوچھا، صرف 40 دنوں کے لیے کیوں؟ ہاں، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ 40 دن تمہاری زندگی کے سب سے اہم اور یادگار دن ہوں گے، انہیں تم کبھی بھلا نہیں پاؤ گی۔ وہاں اس کی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک پل تعلیم و تربیت میں اور اس کے علاج میں گزرنے لگا۔ علاج بہت مشکل تھا، لیکن اس کے لیے اتنی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی گئیں کہ اسے علاج کے دوران میں مشکلات کا احساس نہ ہو سکا۔ بچپن سے اسے یہی بتایا گیا تھا کہ کبھی آپریشن ہوگا تو وہ جان لیوا ہوگا، لیکن جب وہ بابا صاحب کے دائرے میں آپریشن کے مرحلے سے گزری تو اسے ویسا ہی لگا جیسے وہ کئی گھنٹوں تک گہری نیند سوتی رہی تھی، اور جب بیدار ہو گئی ہے تو ایسی شدید تکلیف کا سامنا نہیں ہوا جن سے اکثر آپریشن کے بعد گزرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک مکمل لڑکی بن گئی ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ خوشخبری سنتے ہی سب سے پہلے کبریا اس کی آنکھوں کے سامنے چلا آیا۔ اگرچہ وہ چشم تصور میں مجسم ہو کر آیا تھا، تاہم اسے دیکھتے ہی ایک دم سے شرما گئی، دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ کبریا نے پوچھا، مجھ سے کیوں شرما رہی ہو؟ وہ یہاں کے مارے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جو اس کے جسم و جہاں کا مالک بننے والا تھا وہ سامنے آ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے آ گیا ہے۔ وہ بولا، میری جان، یوں شرماتی لجاتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی ہو، سیدھی دل میں اتر رہی ہو۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بالکل قریب آ گیا ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے، ان ہاتھوں کو چہرے پر سے ہٹاؤ، حیا سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھنے تو دو۔ وہ ہاتھ نہیں ہٹا رہی تھی، انکار میں ساری لا رہی تھی۔ اسے آواز سنائی دی، مجھ سے کیوں شرما رہی ہو، میں تو کبریا کی ماں ہوں۔ وہ نسوانی آواز سن کر چونک گئی، چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو سامنے آمنہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا خوبصورت گلدستہ تھا۔ وہ اسے گلدستہ پیش کرتے ہوئے بولی، میں آمنہ فرہاد ہوں، کبریا میری سوکن سونیا کا بیٹا ہے، لیکن ہمارے درمیان کبھی کوئی سوتیلا پن نہیں ہوتا۔ کبریا میرے شوہر کا بیٹا ہے، اس لیے میرا بھی بھگا بیٹا ہے۔ وہ بولی، میں نے سنا تھا کہ آپ اسی ادارے میں رہتی ہیں، لیکن حیران ہو رہی تھی کہ اب تک آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئیں، یا مجھے آپ سے کیوں نہیں ملایا گیا۔ میں دینی معاملات میں مصروف رہتی ہوں اور دنیاوی معاملات سے دور رہتی ہوں، اسی لیے تم سے ملاقات نہ کر سکی، لیکن آج اتنی بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ میرا یہاں آنا اور تم سے ملنا بہت ضروری ہو گیا تھا، اس لیے چلی آئی ہوں۔ وہ بیٹھ کے سرے پر بیٹھ کر بولی، تم نے یہاں 25 دن گزارے ہیں، مزید 15 دن اور یہاں رہو گی۔ میں نے تمہارے پروگریس رپورٹ پڑھی ہے، ماشاءاللہ تم بہت ہی ذہین اور حاضر دماغ ہو، تمہارے اندر شروع سے قدرتی طور پر خیال خوانی کی صلاحیتیں تھیں، یہاں آ کر یہ اجاگر ہو گئی ہیں۔ میں نے یہاں آ کر 25 دنوں میں جس قدر علم حاصل کیا ہے اور جتنی تربیت حاصل کی ہے، وہ شاید میں باہر کی دنیا میں رہ کر ساری زندگی حاصل نہ کر پاتی۔ میں جناب تبریزی اور یہاں کے معلمین اور ماہرین کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرو۔ تم پچھلے 1 برس میں کتنے ہی ممالک میں جاتی رہی، ہر مذہب کی عبادت گاہوں میں گئیں اور ان کے ڈھنگ سے عبادت کرتی رہیں۔
यहाँ अगर तुमने हमारे ढंग से भी इबादत की, नमाज पढ़ना सीख ली, हमारे दीन इस्लाम के बारे में भी स्टडी करती रहती हो, जब तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओ, चलने फिरने के काबिल हो जाओ, तो अल्लाह ताला के सामने सजदा शुक्र जरूर अदा करना। मैं आपकी हिदायत पर अमल करूंगी, नमाज़ें ज़रूर पढ़ूंगी, लेकिन अपने धर्म के मुताबिक पूजा भी करती रहूंगी। वो उसके शाने को थपक कर बोली, मैं जानती हूँ हिंदू धर्म तुम्हारी घुट्टी में पड़ा है। वालिदैन की मोहब्बत और दीनों धर्म की कशिश बचपन से होती है। इसे दिलो दिमाग से ना ख़त्म किया जा सकता है, ना कम किया जा सकता है। वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, हम किसी को भी उसके मिजाज के खिलाफ अपने दीन की तरफ माइल नहीं करते। दीन धर्म का ताल्लुक दिल से और अकीदे से होता है। तुम्हारा दिल जहाँ जाना चाहता है उधर जाओ, लेकिन मोहब्बत ऐसी होती है जो रास्ते बदल देती है। मेरे बेटे किबरिया की मोहब्बत तुम्हें दो राह पर ले आई है। तुम मोहब्बत से उसके दीन की तरफ भी झुकती रहोगी। वो जानने लगी तो जीना ने कहा, एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ आपके बेटे से मेरी दोस्ती रही, लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा एहसान मुझ पर क्यों किया? मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मैं नामुकम्मल थी, आप लोगों ने मुकम्मल कर दिया। अब मेरे जीने का ढंग बदल जाएगा। मुझे यहाँ बुलाकर मेरे अंदर ऐसी इनकलाबी तब्दीलियाँ क्यों लाई गई हैं? वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, तुम खुद समझो, तुम्हें एक बार आगाही मिल चुकी है कि तुम किबरिया के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारोगी। उस आगाही के मुताबिक तुम हमारी होने वाली बहू हो, फरहाद अली तैमूर की नस्ल को आगे बढ़ाने वाली हो। मैं इसे आगे कुछ नहीं बोलूंगी, हम बुजुर्गों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर वहां से चली गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने चौंक कर देखा, खुद ब खुद बंद नहीं होता, किबरिया ने उसे बंद किया था। वो फिर उसकी निगाहों के सामने चला आया था, मुस्कुरा कर कह रहा था, ये आने वाले दिनों की रिहर्सल है। जब हम तनहा होंगे तो मुझे दरवाजे को अंदर से इसी तरह बंद करने का हक हासिल होगा। उसने एक बार फिर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया, आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हो रहा था कि वो करीब आ गया है, उसके हाथ से छू रहे हैं और वो उसके आवाज पर छा रहा है। उसमें जो तब्दीलियां आई थी उन्होंने उसके एहसासात और जज्बात को भी तब्दील कर दिया था। वो बहुत दूर तक किबरिया को अपने वजूद के अंदर महसूस कर रही थी। जीना जिस अस्पताल में थी उससे निसफ किलोमीटर दूर नौजवान तलबा और तलबात का हॉस्टल था। उस हॉस्टल के साथ ही छोटे बच्चों का हॉस्टल भी था। उस हॉस्टल में 4 बरस से लेकर 15 बरस के बच्चे दिन रात रहते थे। अदनान 5 बरस का होने वाला था और ताशा अपने उम्र के 15वें साल में थी। वो दोनों एक ही हॉस्टल में थे। उनके कमरे एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन इमारत एक ही थी। ताशा को इस इमारत का एक आखिरी दूर इफ्तादा कमरा रिहाइश के लिए दिया गया था और उसे सख्ती से ताकीद की गई थी कि वो जब तक वहाँ ज़ेर तलीम रहेगी उस वक्त तक ख्याल खानी के जरिए किसी भी तालबा और तालिब इल्म के दिमाग में नहीं आएगी, अपनी टेलीपैथी की सलाहियतें किसी पर जाहिर नहीं करेगी। उस हॉस्टल में ताशा का वो आखिरी साल था। उसके बाद वो नौजवान तलबा और तालबात के हॉस्टल में मुंतकिल होने वाली थी। दोनों ही हॉस्टल्स में बड़ी सख्त पाबंदियां थी। कोई स्टूडेंट वहाँ के इंचार्ज से पूछे बगैर किसी दूसरे स्टूडेंट के कमरे में ना जा सकता था और ना ही कहीं उससे मुलाकात कर सकता था। ताशा और अदनान में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। वो हॉस्टल में एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। खेल के मैदान में, योगा और जिम्नाजियम के हाल में उनकी मुलाकात हुआ करती थी। हॉस्टल में वो रूबरू नहीं मिल सकते थे, लेकिन ताशा ज़रूरत के वक्त ख्याल खानी के जरिए उसके दिमाग में आ जाया करती थी। वहाँ तमाम तलबा और तालबात फजर की अजान से पहले बेदार हो जाते थे, गुस्ल वगैरह से फारिग होकर नमाज अदा करते थे। इसके बाद कोई खेल के मैदान में जाता था, कोई योगा के हाल में और कोई जिम्नाजियम के हाल में जाता था। अदनान खुले मैदान में जॉगिंग कर रहा था। ताशा ने उसके करीब आकर कहा, मैंने ख्याल खानी के जरिए मालूम किया था कि तुम यहाँ हो और फिर योगा हाल में जाने वाले हो। वो एक दरख्त के साए में रुक गया। उसे देखते हुए बोला, मैं बहुत परेशान हूँ। वो सारी लाकर बोली, तुम्हारे ख्यालात ने बताया है कि तुमने कल रात ख्वाब में अपनी मामा को देखा है, वो बहुत परेशान है। वो रो रही थी। मैं उनके उनसे पूछ रहा था। वो कह रही थी कोई जालिम उन पर जुल्म करने वाला है और वो मेरे पापा से राब्ता नहीं कर सकती हैं और ना ही मेरे ग्रैंड पा को मदद के लिए बुला सकती हैं। मैं अपनी मामा के आंसू नहीं देख सकता। मैं उनकी मदद के लिए जाऊंगा। तुम बच्चे हो, बचकाना बातें कर रहे हो। तुमने देखा है इस हॉस्टल से कोई बाहर नहीं जा सकता। कोई भी स्टूडेंट बगैर इजाजत के किसी तरफ जाता है तो जगह जगह नस्ब किए हुए टीवी स्क्रीन से पता चल जाता है कि कौन तालिब इल्म कहाँ है और क्या करता फिर रहा है। यहाँ कितनी ही पाबंदी में रहूं, लेकिन अपनी मामा की मदद के लिए जरूर जाऊंगा। कैसे जाओगे? कहाँ जाओगे? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मामा कहाँ है? मैं नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन मैं उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास पहुंच जाऊंगा। मैं उन्हें नहीं रोने दूंगा। इस जालिम का सर तोड़ दूंगा। ताशा ने उसे मोहब्बत से और हमदर्दी से देखा, फिर उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जब हम किसी जालिम से मुकाबला नहीं कर पाते तो ख्याल ही ख्याल में सुपरमैन बनकर उस जालिम का सर तोड़ देते हैं। तुम ऐसी बचकाना ख्यालात के जरिए अपनी माँ की हिफाजत नहीं कर सकोगे। वो अपने शाने पर से उसके हाथ को झटकते हुए बोला, मैं जरूर करूंगा, मैं यहाँ से जरूर जाऊंगा।
वो पलट कर जाने लगा। ताशा उसके पीछे चलते हुए बोली, अदनान तुम अब से पहले भी एक नादानी कर चुके हो। पहले अपनी ग्रैंड मामा के पास उनके क्वार्टर में रहते थे। तुम्हें समझाया गया कि तुम इनकी मदद के दौरान में मखल नहीं हुआ करोगे, लेकिन तुम बार बार उन्हें परेशान करते थे, जिसके नतीजे में तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ हॉस्टल में पहुँचा दिया गया। यहाँ इतनी पाबंदियां हैं कि तुम कभी अपनी मर्जी से कमरे के बाहर कदम भी नहीं रख सकोगे। उसने सोचती हुई नजरों से ताशा को देखा, फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ताशा ने उसके हाथ को थाम लिया। वो उसके साथ हॉस्टल की तरफ जाते हुए बोला, मुझसे वादा करो जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम ख्याल खानी के जरिए मेरे पास रहा करोगी और मेरी मामा को तलाश करने के सिलसिले में मेरी मदद करती रहोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ दिन रात ख्याल खानी के जरिए तुम्हारे पास रहूंगी, कदम कदम पर तुम्हारे काम आती रहूंगी। लेकिन अदनान खुदा के लिए समझो, तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। वो चलते चलते रुक गया, अपना हाथ छुड़ाकर उससे देखते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। वो हैरानी से बोली, कैसे जाओगे? जो बच्चे जिद्दी और खुदसर होते हैं इन पर बहुत सख्ती से पाबंदी आयद की जाती हैं। तुम्हें कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, तुम कैदी बनकर रह जाओगे। तुम सिर्फ इतना वादा करो कि तुम अपनी जुबान पर कायम रहोगी और ख्याल खानी के जरिए मेरे काम आती रहोगी। मैं तो जी जान से तुम्हारे काम आती रहूंगी, किसी वक्त भी तुमसे गाफिल नहीं रहूंगी। लेकिन अदनान ये तुम क्या करने जा रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसने परेशान होकर उसके बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर उसे अपने हाथों में लेकर कहा, प्लीज अदनान यहाँ से जाने की जल्दी ना करो, हम कोई प्लानिंग करेंगे, कोई अच्छा सा मंसूबा बनाएंगे, फिर तुम इस पर अमल करोगे तो शायद कामयाबी होगी। फिर वो कुछ सोच समझ कर बोली, ऐसा करो अपनी ग्रैंड मामा से मुलाकात करो और इन्हें अपनी मामा के हालात बताओ। फिर उनसे कहो कि तुम उनकी मदद के लिए जाना चाहते हो या फिर यहाँ से किसी तरह तुम्हारी मामा की मदद की जाए। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं ही उनके काम आऊंगा, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। वो फी ईमान अल्लाह कहकर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगा। वो उसे जाते हुए देख रही थी और ख्याल खानी के जरिए बोल रही थी, अदनान मेरी इस मजबूरी को समझना कि इस इदारे के अंदर ख्याल खानी के जरिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। तुम मेरी टेलीपैथी से फायदा उठाकर यहाँ से फरार नहीं हो सकोगे। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ तब तुम मेरे पास आकर मेरे काम आती रहो। वो वहां से जा रहा था, मैदान को अबूर करता हुआ अहाते की इस दीवार के पास पहुंच रहा था जहां एक छोटा सा गेट था। वहां एक अपनी मखसूस वर्दी में खड़ा हुआ था। उसने अदनान को देखते हुए पूछा, अदनान बाबा आप इधर कहाँ आ रहे हैं? आपको अपने हॉस्टल की तरफ जाना चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सर उठाकर उसे देखने लगा। दरबानी की आंखें उसकी आंखों से मिली तो वो एकदम से परेशान हो गया। ये पहले भी बयान किया जा चुका है कि उसे विरसे में अपनी माँ शिवानी की आंखें मिली थी और शिवानी की आंखों में ऐसी खतरनाक मकनातीसी कशिश थी कि वो जिसे देखती थी उसे अपने शहर में जकड़ लेती थी। मौजूदा शिवानी यानी अलका के चेहरे पर अब ऐसी आंखें नहीं थीं। अदनान की पैदाइश के बाद जब शिवानी की मौत वाक़या हुई तो उसके साथ उसकी आंखें भी फना हो गई थीं। बाद में उसकी आत्मा एक जिस्म से दूसरे जिस्म की तरफ भटकती रही, लेकिन वो जिसके अंदर भी जाती रही उसका चेहरा उन पुरकशिश आंखों से महरूम रहा। वो आंखें विरसे के तौर पर उसके बेटे अदनान को मिल गई। दरबान की आंखें अदनान की नजरों से चिपक कर रह गई थीं। बेटे के चेहरे से माँ की आंखें से घूर रही थीं और जुबानें बेजुबानी से दरबान को कह रही थी, दरवाजा खोलो। उसका हाथ बेख्तियार अपनी जेब के अंदर गया, उसने चाबी निकाली, फिर पलट कर दरवाजा खोलने लगा। दूर खड़ी हुई ताशा उसे देख रही थी और ख्याल खानी के जरिए समझ रही थी कि दरबान इस बच्चे से सहरज़दा हो गया है। ताशा अमलात में अदनान की आंखें देखती रहती थी और ये समझती थी कि उसकी आंखें बहुत ही पुरकशिश हैं, लेकिन इन लम्हात में वो पुरकशिश आंखें कुछ ज्यादा ही गजबनाक हो गई थीं। दरबान का दिमाग कह रहा था वो इन आंखों का ताबेदार है और वो आंखें जो कह रही हैं वो वही करेगा, और उसने वही किया, दरवाजे को खोल दिया। अदनान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस दरवाजे से गुजरकर अहाते के बाहर चला गया। ऐसे ही वक्त खतरे का अलार्म बजने लगा। हॉस्टल के इंचार्ज ने और काउंटर क्लर्क ने टीवी स्क्रीन पर देखा था कि एक दरबान ने गेट खोलकर अदनान को बाहर जाने दिया है। उन्होंने फौरन ही खतरे का अलार्म बजाया। फिर टीवी स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी, 2 नंबर गेट को कवर किया जाए। अदनान बाबा हुक्म के बगैर हॉस्टल के अहाते से बाहर जा रहे हैं, उन्हें रोक कर वापस लाया जाए। चश्मे ददन में सारे में जाती हुई एक गाड़ी तेज रफ्तारी से चलती हुई आई और दूर से आने वाले अदनान के सामने रुक गई। इस गाड़ी में सिक्योरिटी फोर्स के 4 अफराद थे। उनके अफसर ने गाड़ी से उतरकर बाहर आते हुए अदनान को मुखातिब किया, हेलो अदनान, आप कहाँ जा रहे हैं? अदनान एक तो मेरा पोता था, इसलिए उसकी अहमियत थी, फिर ये कि उस इदारे में रूहानियत के हवाले से आमना को आला मुकाम हासिल था। वो अदनान की दादी थी, इसलिए सभी इस बच्चे की इज्जत करते थे और सब उससे अदब से बातें करते थे। वो सिक्योरिटी अफसर उसे समझा मनाकर वापस हॉस्टल में ले जाना चाहता था, लेकिन उसे नजरें मिलते ही जहाँ था वहीं थम गया था। जहन ऐसे जम गया था जैसे सोचने समझने की सलाहियतें छीन ली गई हों। इन लम्हात में वो सिर्फ शिवानी की आंखों को देख रहा था और इन आंखों की जुबान को समझ रहा था। वो आंखें कह रही थी, मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाओ और इस इदारे के बाहर पहुंचा दो।
सिक्योरिटी अफसर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली, उसे अपने साथ लेकर गाड़ी के पास आया। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर उसे अपने बराबर वाली सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट करके एक यू टर्न लेकर वहां से जाने लगा। ताशा इसके अंदर मौजूद थी और ये देखकर हैरान हो रही थी कि वो सिर्फ अपनी आंखों से सैर अदा करते हुए इस इदारे से बाहर जाने का रास्ता हमवार करता जा रहा है। सब उसके मती और फरमाबरदार बनते जा रहे हैं। वो गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से चलती हुई बाबा साहब के दायरे के दरवाजे की तरफ जा रही थी। फिर अचानक ही एक जगह रुक गई। सामने आमना फरहाद खड़ी हुई थी। सभी ने गाड़ी से उतरकर उसे सलाम किया। वो सलाम का जवाब देने के बाद अपने पोते की तरफ देखते हुए बोली, अदनान मेरे पास आओ। वो बोला, नहीं आऊंगा, अब मेरी दादी नहीं है, मैं अपनी मामा के पास जाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ी के पास आई। फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो उतरो गाड़ी से। उसने घूर कर अपनी दादी को देखा। आमना ने उससे नजरें मिलाई तो उसकी आंखें बेइख्तियार झुक गईं। वो बोली, मैं जानती हूँ बाज हालात में ही आंखें गजबनाक हो जाती हैं। तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ चीख रही है, तुम्हें पुकार रही है और तुम्हारे जरिए हमसे इमदाद तलब कर रही है। आ जाओ बेटे, अब हम तुम्हारी मामा के लिए जरूर कुछ करेंगे। उसका हाथ दादी की गिरफ्त में था। वो चुपचाप गाड़ी से उतरकर उसके साथ जाने लगा। करीब ही आमना का क्वार्टर था। वो उसे अपने क्वार्टर में ले आई। एक कमरे में पहुंचकर बोली, तुम अपनी उम्र से ज्यादा काम क्यों करना चाहते हो? क्या तुम यहाँ से जाकर अपनी माँ को तलाश कर सकते हो? उसे किसी अजनबी जालिम से बचा सकते हो? वो गुस्से से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि यहाँ नहीं रहूंगा, अपनी मामा के पास जाऊंगा। आप अच्छी नहीं है, मुझे इस घर से निकालकर हॉस्टल में पहुंचा दिया। मुझे यहाँ से जाने दें, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तुम्हारी शरारतों, जिद और हट दर्मी की वजह से तुम्हें हॉस्टल पहुंचाया गया है। तुम यहाँ मेरे पास रहते थे, लेकिन मेरी इबादत के दौरान में मखल होते थे। कभी सामने आकर खड़े हो जाते थे, कभी कांधे पर सवार हो जाते थे। ख्वाह अपनी कोई न कोई जिद मनवाते रहते थे। पता नहीं कुदरत ने तुम्हें कैसा जहन दिया है। कोई काम हो उसे अपनी उम्र से आगे बढ़कर करना चाहते हो। तुम्हारे पास इतनी सी भी अकल नहीं है कि अच्छे बुरे इंजाम को समझकर कोई मुनासिब कदम उठा सको। वो अपनी दादी को घूर कर देख रहा था। वो बोली, नजरें नीची करो। उसने नजरें नीची की, फिर मुंह फेर कर जाने लगा। उसने आवाज दी, इधर आओ। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला, नहीं आऊंगा, आप मेरी दादी नहीं है, मैं आपका पोता नहीं हूँ। वो गुस्से में पाँव पटकता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। वो सोचती हुई नजरों से उस दरवाजे को तकने लगी जिस दरवाजे से उसका पोता गुजर कर गया था। वो सोच रही थी, मेरा ये पोता नादान है, मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी है। अब इस दुनिया में जो भी है वो इसकी माँ की परछाई है, एक फरेब है। हमारी जीती जागती दुनिया में लंबे अरसे तक नहीं रहेगी, जल्द फना हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली। मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि उसकी रूह काले अमल के शिकंजे में आकर भटक रही है। उससे आलम बरज़ख में पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही। अगर अभी किसी मुसीबत में है और इसकी मौत आने वाली है तो फिर उसके मौजूदा जिस्म को मर जाना चाहिए ताकि उसकी रूह आलम अरवाह की तरफ चली जाए। आमना रूहानियत के इस दर्जे तक पहुंची हुई थी जहां बैठे ही बैठे इंसान दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है और चश्मे ज़दन में वापस भी चला आता है। वो रूहानी टेलीपैथी के जरिए मालूम कर सकती थी कि वरदान कहाँ है और आइंदा शिवानी कहाँ पहुंचकर मुसीबत में गिरफ्तार होने वाली है। वो पलक झपकते ही अपने पोते को इसकी माँ के पास पहुंचा सकती थी और इसे मसाइब से निजात दिला सकती थी। लेकिन वो लोग जो रूहानियत के मराइल तय करते हैं और कमाल हासिल करते रहते हैं, वो दुनिया के मामलात से दूर हो जाते हैं। अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते हैं। जब तक इन्हें कुदरत की तरफ से कोई इशारा नहीं मिलता तब तक वो अपने किसी सगे रिश्तेदार के भी काम नहीं आते। उन्हें हुक्म होता है कि वो अपने सगे रिश्तेदारों को इनके अच्छे बुरे अमाल के साथ जिंदगी गुजारने दें। अगर आमना को ऐसा कोई इशारा मिलता कि इसे शिवानी की इमदाद करना चाहिए और बेटे को माँ के पास पहुंचाना चाहिए तो वो फौरन ही ऐसा करती, लेकिन वो फिल वक्त मजबूर थी। अपने लाडले पोते के लिए भी कुछ नहीं कर सकती थी। जनाब अली असदुल्लाह तबरेज़ी ने आमना को समझाया था कि रूहानियत के मराहिल से गुजरना बहुत दुश्वार होता है। सबसे पहली और अहम शर्त यही होती है कि अपने खून के रिश्तों से भी मुंह मोड़ लिया जाए, सिर्फ अल्लाह ताला से लो लगाई जाए और कातिब तकदीर की तहरीर के मुताबिक ये यकीन कर लिया जाए कि अपने हो या पराए, सौतेले हो या सगे, सबको अपने अपने मुकद्दर के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होती है। लिहाजा उसका लाडला पोता अपने मुकद्दर के मुताबिक परेशान है तो उसे परेशान होने दो। जो तकदीर में लिखा होगा वही इसके पोते के सामने आएगा।